بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء و افعال مرب، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ صیغہ صفت میں کن شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تب اس کا جمع مذکر سالم والا اعراب آئے گا۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِي صِفَةِ أَن تَكُونَ صِفَةً لِمُذَكَّرٍ عَاقِلٍ خَالِيَةٌ مِنْ تَاءِ التَّأْنِيثِ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ أَفْعَلَ فَعَلَاءَ وَلَا مِنْ بَابِ فَعْلَانَ فَعَلَا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائزون، وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون، وخرج بقولنا خالية من تاء التانيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التانيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون، وخرج بقولنا ليست من باب يفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون، وكذلك ما كان من باب فعلان فعلا نحو سكران وسكرى فلا يقال سكرانون، وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون۔ وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التانيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون۔ وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومدرم فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التانيث وليست من باب يفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور شرط لگائی گئی ہے صفت کے صیغے میں یہ کہ وہ صفت ہو مذکر عاقل کی، خالی ہو تاء تانیث سے، نہ ہو باب افعل فعلا سے اور نہ ہی باب فعلان فعلا سے، اور نہ ہی ان میں سے ہو جس میں مذکر اور مؤنث برابر ہوتے ہیں، لہذا نکل جائے گا ہمارے اس قول صفت ہو مذکر سے ہر وہ صیغہ جو کہ صفت ہو مؤنث کی۔ نہیں کہا جائے گا حائز میں حائزونہ، اور ہمارے اس قول عاقل سے نکل جائے گا جو کہ صفت ہو مذکر غیر عاقل کی۔ نہیں کہا جائے گا سابق میں جو کہ فرس کی صفت ہے سابقونہ، اور ہمارے اس قول خالی ہو تاء تانیث سے نکل جائے گا ہر وہ صیغہ جو کہ صفت ہو مذکر عاقل کی لیکن اس میں تانیث کی تا ہو، جیسا کہ علامہ نہیں کہا جائے گا اس میں علامونہ، اور ہمارے اس قول جو کہ افعل فعلا میں سے نہ ہو نکل جائے گا ہر وہ صیغہ جو اس طرح ہو، جیسے کہ احمر اس لیے کہ اس کی مؤنث ہمراہ آتی ہے لہذا نہیں کہا جائے گا اس میں احمرونہ، اور اسی طریقے سے ہر وہ صیغہ جو کہ باب فعلان فعلا سے ہو جیسا کہ سکران اور سکرا نہیں کہا جائے گا سکرانونہ، اور اسی طریقے سے ہر وہ صیغہ جو کہ وصف میں مذکر اور مؤنث برابر ہو جیسا کہ صبور اور جریح، اس لیے کہ کہا جاتا ہے رجل صبور امرأۃ صبور رجل جریح امرأۃ جریح، نہیں کہا جائے گا جمع مذکر سالم میں صبورونہ اور نہ ہی جریحونہ۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے جامد کے صیغہ کی طرف جو کہ تمام شرطوں کو جامع ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اپنے اس قول کے ساتھ عامر، اس لیے کہ عالم ہے مذکر عاقل کا، خالی ہے تاء تانیث سے اور ترکیب سے، اس لیے اس میں کہا جائے گا عامرونہ۔ اور مصنف رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا ہے صفت مذکورہ کی طرف پہلے اپنے اس قول مذنب کے ساتھ، اس لیے کہ صفت ہے مذکر عاقل کی جو کہ خالی ہے تاء تانیث سے، اور یہ باب افعل فعلا میں سے نہیں ہے اور نہ ہی باب فعلان فعلا میں سے ہے، اور نہ ہی ان میں سے ہے جس میں مذکر اور مؤنث برابر ہوتے ہیں، لہذا اس میں مذنبونہ کہا جائے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن جمع مذکر سالم اور ملحقات جمع مذکر سالم کا اعراب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر یہ پڑھا تھا پچھلے سبق کے اندر کہ جمع مذکر سالم کی 2 قسمیں ہیں، جس کی حالت رفع واو اور حالت نصبی یا کے ساتھ آتی ہے، ان میں سے ایک ہے جامد۔ جامد کی حالت رفع واو کے ساتھ اور اسی طریقے سے حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ آتی ہے، اس میں کیا شرطیں ہیں وہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہیں۔ اب یہاں سے صیغہ صفت کے بارے میں بتا رہی ہیں، یعنی ہر وہ صیغہ جس کے اندر کوئی وصفی معنی پایا جاتا ہو اس کی جمع بھی حالت رفع میں واو کے ساتھ اور اسی طریقے سے حالت نصبی میں یا کے ساتھ آتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ کیا شرطیں ہیں وہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر صیغہ جو ہے وہ صفت کا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ جو صفت ہے وہ مذکر عاقل کی ہو، تاء تانیث سے خالی ہو، اور باب افعل فعلا میں سے بھی نہ ہو اور باب فعلان فعلا میں سے بھی نہ ہو، اور نہ ہی اس میں ایسا صیغہ ہو جس میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں۔ تو دیکھیں صفت کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ کون کون سی شرطیں میں ایک ایک کر کے ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 مذکر کی صفت ہو، نمبر 2 مذکر عاقل ہو، نمبر 3
ताए तानीस से खाली हो। नंबर 4 अफ़अल फ़ाला में से ना हो। नंबर 5 फ़ालान फ़ाला में से ना हो। नंबर 6 ऐसा सीगा ना हो जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस बराबर हो। ये 6 शर्तें हैं। जब ये 6 शर्तें बैक वक्त पाई जाएंगी तो फिर उसकी हालत रफ़ी वाव नून के साथ आएगी और हालत नस्बी और जरी या नून के साथ आएगी जमा मुज़क्कर सालिम में। अगर कोई एक शर्त भी नहीं पाई जाती है तो फिर उसका इराब जमा मुज़क्कर सालिम वाला नहीं आएगा। अब यहाँ से आगे एतराज़ी मिसालें जिक्र करें ताकि इसमें ये वाली बात वाज़ेह हो जाए कि कौन सी शर्त इनमें से नहीं पाई जा रही है। देखिए ज़रा, ये बता रहे हैं कि शर्त लगाई गई सिफत में कि वो सिफत हो मुज़क्कर की। 1 मुज़क्कर आकिल की सिफत हो। 2 खाली हो ताए तानीस से। 3 बाब अफ़ल फ़ाला में से ना हो। 4 फ़ालान फ़ाला में से ना हो। 5 और ना ही वो ऐसा सीगा हो जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर हैं। ये 6 शर्तें आएगी। लिहाजा जब हमने ये कहा ना कि सिफत हो मुज़क्कर की, हर ऐसा सीगा निकल जाएगा जो कि मुअन्नस की सिफत है, यानी उसके अंदर वस्फ़ी माना तो पाया जा रहा है लेकिन वस्फ़ी माना मुअन्नस पर दलालत करने वाला पाया जा रहा है, तो उसकी जो आप जमा लेकर आएंगे वो जमा मुज़क्कर सालिम वाव नून के साथ नहीं आएगी। जैसे कि हाइज़। अब हाइज़ का अगर आप सीगा देखेंगे हैज़ वाली औरत, तो अब इसमें देखिए वस्फ़ी माना तो है लेकिन वस्फ़ी माना औरत की सिफत है, मर्द की सिफत नहीं है, मर्द को हैज़ नहीं आता है, लिहाजा इसकी जमा आप हाइज़ूना के साथ नहीं लेकर आएंगे। यहाँ पर कौन सी शर्त नहीं पाएगी? पहली शर्त नहीं पाई गई। और इसी तरीके से अगर मुज़क्कर है लेकिन मुज़क्कर आकिल नहीं है बल्कि गैर आकिल है तो फिर वो भी इससे निकल जाएगा। ये बता रहे हैं कि हमने ये जो आकिल की शर्त लगाई है, शर्त नंबर 2, इससे हर वो सिफत निकल जाएगी जो कि मुज़क्कर गैर आकिल की जमा है। अब देखिए जो साबिक है, साबिक उस घोड़े को कहते हैं जो सबकत ले जाए यानी आगे बढ़ जाए। अब ये वस्फ़ी माना तो है और मुज़क्कर भी है लेकिन मुज़क्कर आकिल नहीं गैर आकिल है, लिहाजा साबिक की जो जमा है वो आप साबिकूना के साथ नहीं ला सकते हैं। ये बता रहे हैं हमारे इस कौल आकिल इससे निकल जाएगा माकाना सिफतन जो कि सिफत हो मुज़क्कर गैर आकिल की, लिहाजा साबिक जो कि सिफत है फ़रस की घोड़े की, उसकी जमा आप साबिकूना के साथ नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी शर्त नहीं पाई जा रही है? दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही है। इसी तरीके से जो हमने तीसरी शर्त ये लगाई थी कि ताए तानीस से खाली हो, तो इससे हर वो सिगा निकल जाएगा जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन उसके आखिर में ताए तानीस आती है, लिहाजा उसकी जमा भी आप वाव नून के साथ या फिर हालत नस्बी और जरी में या नून के साथ नहीं ला सकते हैं। ये बता रहे हैं कि हमने जो ये वाली शर्त लगाई थी कि ताए तानीस से खाली हो, इससे हर वो सिगा निकल जाएगा जो कि सिफत है मुज़क्कर आकिल की लाकिन फ़ी ही ताउ तानीस, लेकिन उसके अंदर ताए तानीस पाई जाती है, जैसे कि अल्लामा। अब देखें अल्लामा ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन इसके आखिर में गोलता है, लिहाजा इसकी जमा हम अल्लामूना के साथ नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी शर्त नहीं पाई जा रही है? तीसरी शर्त नहीं पाई जा रही है। अब चौथी शर्त को समझ लें। चौथी शर्त ये है कि हर वो सीगा जो जिसकी आप जमा वाव नून और या नून के साथ लाना चाह रहे हैं सीगा सिफत, वो ऐसा अफ़आलू ना हो जिसकी मुअन्नस फ़ाला आती है, यानी ऐसा सीगा सिफत अफ़आलू के वज़न पर ना हो जिसकी मुअन्नस फ़ाला आती है। मिसाल देखें ज़रा, जैसे कि अहमर, अहमारू बरवज़न अफ़आलू। अब ये देखें सुर्खी वाला मर्द, अब ये देखें अफ़आलू के वज़न पर आ रहा है मुज़क्कर और इसकी जो मुअन्नस है वो आती है हमराऊ, फ़ालाऊ के वज़न पर। अब ये देखें ये ऐसा अफ़आलू है जिसकी मुअन्नस फ़ाला के वज़न पर आती है, तो इस अफ़आलू अगरचे सीगा वस्फ़ी माना पर दलालत कर रहा है, मुज़क्कर की सिफत है, मुज़क्कर आकिल की सिफत है, ताए तानीस से भी खाली है, लेकिन ये चूँकि ऐसा अफ़आलू है जिसकी मुअन्नस फ़ाला के वज़न पर आती है, लिहाजा इसकी जमा वाव नून के साथ नहीं ला सकते हैं। जमा मुज़क्कर सालिम वाला इराब आप इसको नहीं दे सकते हैं, आप अहमर का अहमरूना नहीं कह सकते हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे इस कौल बाब अफ़आलु फ़ाला में से ना हो, इससे निकल जाएगा हर वो सीगा जो कि इसी तरह है, जैसे कि अहमर इसलिए कि इसकी मुअन्नस हमरा है, लिहाजा इसमें आप अहमरूना यानी वाव नून के साथ जमा मुज़क्कर सालिम वाला इराब नहीं ला सकते हैं। ये तो हो गया अफ़आलु फ़ाला। तो यहाँ पे कौन सी शर्त नहीं पाई जा रही है? चौथी शर्त नहीं पाई जा रही है। इसी तरीके से ऐसा फ़ालानु ये भी ना हो जिसकी मुअन्नस फ़ाला के वज़न पर आती है, यानी ऐसा वस्फ़ी माना जो कि मुज़क्कर फ़ालान के वज़न पर आता हो और उसकी मुअन्नस फ़ाला के वज़न पर आती हो, तो उसकी जमा भी आप जमा मुज़क्कर सालिम वाली नहीं ला सकते हैं, हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नस्बी और जरी में या के साथ। जैसे कि इसकी मिसाल देखें, सकरान और सकरा। अब ये देखें सकरान बरवज़न फ़ालान है और इसकी मुअन्नस आती है सकरा, बरवज़न फ़ाला है, तो लिहाजा सकरान की जमा मुज़क्कर सालिम आप वाव नून के साथ नहीं ला सकते हैं, आप सकरानूना नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे कौन सी शर्त नहीं पाई जा रही है? यहाँ पर पांचवी शर्त नहीं पाई जा रही है।
इसी तरीके से अगर सीगा सिफत ऐसा है जिसके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बराबर इस्तेमाल होते हैं, तो फिर हर ऐसे सीगा सिफत की जमा भी आप वाव नून और या नून के साथ नहीं ला सकते हैं। जैसे कि मिसाल देखें ना, ये बता रहे हैं कि इसी तरीके से अगर वसफ़ में बराबर हो मुज़क्कर और मुअन्नस, जैसे कि सबूर, सब्र करने वाला मर्द, इसके लिए भी सबूर इस्तेमाल होता है, सब्र करने वाली औरत, इसके लिए भी सबूर का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। तो सीगा एक है लेकिन इसके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मुश्तरक हैं। इसी तरीके से जरीह, जो कि मजरूह के माना में, ज़ख्मी के माना में, अब ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो चूंकि लफ्ज़ ऐसा है जो मुज़क्कर के साथ ख़ास नहीं है बल्कि इसमें मुअन्नस भी आ जाती है, तो आप इसकी जमा भी वाव नून के साथ या फिर हालत नस्बी और जरी में या नून के साथ नहीं ला सकते हैं। ये बता रहे हैं इसी तरीके से अगर वसफ़ में मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर हों, जैसे कि सबूरुन और जरीहुन, तो इसलिए कि अब ये मर्द की सिफत भी आती है, रजुलुन सबूरुन भी कहा जाता है, औरत की सिफत भी आती है, इमरातुन सबूरुन भी कहा जाता है। इसी तरीके से जरीह, मर्द की सिफत भी आती है, रजुलुन जरीहुन भी कहा जाता है, और औरत की सिफत भी आती है, इमरातुन जरीहुन भी कहा जाता है। लिहाजा जमा मुज़क्कर सालिम आप सबूरुना और जरीहुना नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर छठी शर्त नहीं पाई जा रही है। तो ये खुलासा ये है कि 6 शर्तें पाई जाएंगी सीगा सिफत में, तो फिर आप उसकी जमा हालत रफ़ी में वाव नून के साथ और हालत नस्बी और जरी में या नून के साथ लाएंगे। अब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो 2 मिसालें दी है ना, एक मिसाल दी है आमिर की और एक मिसाल दी है मुज़निब की। आमिर की जो मिसाल है ये जामिद की है और मुज़निब की जो मिसाल है सिफत की है। तो ये मिसालें वो दी हैं जिनमें सारी की सारी शर्तें पाई जा रही हैं, लिहाजा इनकी जमा वाव नून और या नून के साथ आएगी। ये बता रहे हैं कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो इशारा किया था ना इसमें जामिद की मिसाल की तरफ, ये वो तमाम शर्तों को जामे, यानी इसके अंदर वो तमाम शर्तें पाई जा रही हैं जिसका जिक्र इससे पिछले सबक में, सबक नंबर 8 के अंदर गुजर चुका है। अब ये देखें, आमिर जामिद है, जामिद के अंदर हमारी ये शर्त थी कि वो अलम हो मुज़क्कर का, आकिल का, मुज़क्कर आकिल का अलम हो, ताए तानीस से खाली हो, तरकीब से खाली हो, और ये जो आमिर है इसके अंदर ये सारी की सारी शर्तें पाई जा रही हैं, लिहाजा इसकी जमा आप वाव नून के साथ लाएंगे और इसमें आमिरूना कहा जाएगा। और इसी तरीके से जो सिफत की जो 6 शर्तें हैं इसकी मिसाल दी है मुज़निब। अब इसमें देखें मुज़निब जो मिसाल है ये इसमें 6 की 6 शर्तें पाई जा रही हैं। सिफत है मुज़क्कर की है, आकिल, मुज़क्कर आकिल की सिफत है, ताए तानीस से खाली है, अफ़अल फ़अलान में से भी नहीं है, और ना ही फ़अलान फ़अला में से है, और ना ही उस सीगे में से जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर होते हैं, लिहाजा इसकी जमा भी वाव नून के साथ आएगी और आप इसके अंदर मुज़निब होना कह सकते हैं।